Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I'm former assistant professor of law at Campus Law Center Law Faculty, Delhi University, and presently I'm working as an academic head of Manolaw classes. So dear students, in today's session I will discuss with you basic concepts of criminal law, and in today's lecture I will discuss with you what is offense and what are essential elements of offense under IPC. But before moving forward, there is an important announcement for all of you. Admissions are open at Manolaw classes for upcoming batch of 2022 and 2023. All of you may get yourself enrolled with us for getting the best result. And for more information, you can dial the given number on screen, that is 9971 444 054. Dear students, date of CLAT examination 2022 is May 8, 2022, and the date of CLAT examination 2023 is 18 December 2022. So prepare yourself accordingly. So now we come to the basic concepts of criminal law, and since it is a new subject for all of you, so you may not be able to understand the technical terms of criminal law like offense or crime. So I am starting it from the general word, that is wrong. Wrong is a word which you can understand easily because you may have the knowledge, you may have the idea that what is wrong and what is right. Okay. So now we come to wrong. So what is wrong? So wrong can be defined as any act which is not according to law. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है रॉन्ग को डिसाइड करने का? एनी एक्ट विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, मीन्स कोई भी एक्ट जो लॉ के अनुसार नहीं है, वी कैन कंसीडर दैट एक्ट एज रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, कमिटिंग द मर्डर ऑफ एनी पर्सन इज एन एक्ट and this act is also not according to law, so it can be termed as wrong. Similarly, if any act is not according to the norms of the society which are created by the society from time to time, so it is also considered as wrong. So what is the definition of wrong? So the definition of wrong is that any act which is not according to the law of the country and which is not according to the norms of the society, such acts are considered as wrong. Now question arises, what may be the kinds of wrong? Means wrong कितने प्रकार के हो सकते हैं? So here I am telling you, or I have classified these wrongs into two categories. Number one is the legal wrong and number second is the moral wrong. So the first question arises in our mind that what is legal wrong? So the definition of legal wrong is that any act or any illegal omission which is not according to law, means जो काम या कार्य law means illegal omission law के अनुसार नहीं है, that is considered as legal wrong. For example, committing the murder of someone, committing the offense of theft, extortion, robbery, all these acts are not according to law because law prohibits all these acts. So इसलिए हम इसको बोलते हैं legal wrong. Second is moral wrong. So what is moral wrong? So any act which is not according to the norms of the society. For example, if you don't give food to a beggar and the beggar dies because of hunger, अगर आप एक भिखारी को खाना नहीं देते हैं और भिखारी की डेथ हो जाती है भूख के कारण, तो क्या आपकी लीगल लाइबिलिटी होगी, और वेदर यू हैव कमिटेड एनी लीगल रॉन्ग और यू हैव जस्ट कमिटेड ए मॉरल रॉन्ग? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट you have just committed moral wrong because there is no legal duty on your part to provide food to a beggar. तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी मॉरल लाइबिलिटी होगी, कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी, and no prosecution can be initiated against you for such kind of wrong. Next, now we further classify the legal wrong into two categories, and the category number one is criminal wrong and other is civil wrong. So legal wrong can also be classified into two categories. First one, criminal wrong, and second is civil wrong. So what is criminal wrong? Criminal wrong is an act which is prohibited by criminal law. Criminal law like IPC means committing the murder of someone, committing the dacoity with someone, or committing the robbery with someone.
These are such acts which are criminal in nature and these have been prohibited by the criminal law of the country, that is IPC. तो इनको हम इसलिए बोलते हैं this criminal wrong. Second हमारा आता है civil wrong. So civil wrong are those wrongs which are not so grave in comparison to the criminal law and these are considered wrong against an individual. So for example, if I violated the right of any person, or suppose if I committed the nuisance means the private nuisance against any individual, so this private nuisance will be considered as a tort and that person will be eligible to bring legal action against me and he can claim compensation from me. वो मेरे अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ला सकता है और वो मुझसे कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है. So now we will try to understand the difference between the legal wrong and moral wrong. So what is the legal wrong? So legal wrong means any wrong which is not according to the law or any wrong which law says that it must not be committed, but a person commits that wrong, then it is considered that legal wrong. So what is moral wrong? Moral wrong, it is wrong against the morality or some principles of the society. Secondly, legal wrong is against the mandate of law, and mandate of law means law says to the person that you must not do this act or these act. कानून कहता है कि आपको ये काम नहीं करने, लेकिन जब कोई पर्सन लीगल रॉन्ग करता है तो वो उसी काम को करता है जिसको लॉ मना करता है. फॉर एग्जाम्पल आईपीसी और हमारा जनरल लॉ कहता है कि यू मस्ट नॉट कमिट द मर्डर ऑफ एनी पर्सन एंड IPC specifically says that you must not commit the murder of any person, but simultaneously IPC provides the provisions that if you will not obey the direction of law, that is not to commit the murder of any person, then there is provision in IPC that if you commit the murder of that person, you will be liable for that murder under section 302 of IPC. As far as the moral wrong is concerned, it is against the नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं. नॉर्म्स का मतलब जैसे कि किसी के साथ गलत नहीं करना, है ना, बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करना. सो इफ वी डू समथिंग रॉन्ग बट दैट रॉन्ग इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर, देन इट कैन बी टर्म्ड एज ए मॉरल रॉन्ग. नाउ वी कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिमिनल रॉन्ग एंड द सिविल रॉन्ग. सो बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग इज दैट क्रिमिनल रॉन्ग आर कंसिडर्ड अगेंस्ट द होल सोसाइटी. Suppose a murder takes place in the society or in a particular area, then all the inhabitant of that area will have the fear of murder. ठीक है, तो उनके दिमाग में मर्डर का फियर होगा. So it's affect the society. That is the reason all criminal wrong are considered wrong against society, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रॉबरी, डेकॉइटी, etc. लेकिन जो हमारे सिविल रॉन्ग हैं, these are not considered wrong against the society, rather these are considered wrong against an individual. ये जो सिविल रॉन्ग है हमारे, लाइक सिविल ट्रेसपास, है ना, लाइक प्राइवेट न्यूसेंस, सो दीज आर कंसिडर्ड रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल. सपोज दैट अगर ए ने बी के घर के सामने कूड़ा फेंका, तो नाउ ए हैज कमिटेड रॉन्ग, but this wrong will affect B only and this wrong will not affect the full society. Now we come to the next part, parties involved. So as far as the criminal wrong is concerned, there are three parties involved in the criminal wrong. So first one is the accused. So accused कौन होता है? Accused is the person who commits an offense. जो person अपराध करता है, that person is called accused. Second, victim. Victim is the person against whom offense is committed. Victim कौन होता है? जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया जाता है. एंड थर्ड इज द स्टेट. और यहाँ पर जो विक्टिम है, विक्टिम में वो लोग भी शामिल होते हैं who are affected by that particular offense. Suppose मोहन इज द मेन ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली. किसी फैमिली का मेन ब्रेड अर्नर है और उस मोहन का मर्डर कोई क्रिमिनल कर देता है. नाउ
मोहन हैज 1 वाइफ, 2 चिल्ड्रन एंड 2 पेरेंट्स। मोहन के मम्मी पापा हैं, एक उसकी पत्नी है और 2 उसके बच्चे हैं। नाउ these 5 person will also be considered as the victim as per the definition of section 2WA of CRPC. Now third party is state. Now question arises, in the case of criminal law, accused commits the offense against the victim. So why the state is a party in crime or criminal law? So the answer of this question is that since it is the duty of state to maintain the law and order in the society, and if any person commits the offense in the society, it means that person has violated the duty of state to maintain the law and order in the society. That's why state bring action against that person that is accused. Means स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल सोसाइटी में ऑफेंस करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस क्रिमिनल ने स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ड्यूटी थी उसको वायलेट किया। इस ड्यूटी के वायलेशन में स्टेट उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लाता है। और आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सब में एक पार्टी हमेशा स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्राइम टेक प्लेस इन यूपी, so and the crime has been committed by some person like Ashok, so the name of the case will be like state of UP versus Ashok. So state of UP will bring action against the Ashok. Now we come to the civil wrong. So in the case of civil wrong there are 2 parties only and the party number 1 is plaintiff. So plaintiff कौन होता है? Plaintiff is the person who bring action against the other party or against whom some civil wrong has been committed. So suppose A committed some civil wrong against me, so I will bring action against the A, so I will become plaintiff, and A who has committed some civil wrong against me, that will become defendant. तो सिविल लॉ में 2 ही पार्टी होती हैं, पहला प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके अगेंस्ट सिविल केस फाइल किया जाता है। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सिविल केस फाइल करता है। नाउ वी कम टू थर्ड पॉइंट, इन क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट दिया जाता है। तो क्रिमिनल लॉ में हमेशा पनिशमेंट दिया जाता है और सिविल लॉ में हमेशा कंपेंसेशन दी जाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड कंपेंसेशन? इन द केस ऑफ पनिशमेंट द एक्यूज्ड पर्सन इज सेंट टू जेल and he is also liable to pay fine in some of the cases, ठीक है, एज स्पेसिफाइड अंडर आईपीसी। तो क्रिमिनल लॉ में एक्यूज पर्सन और कन्विक्टेड पर्सन जेल में जाता है और वो कुछ फाइन भी देता है, ठीक है, लेकिन सिविल लॉ में वो केवल जो डिफेंडेंट है ही इज ओनली लाइबल टू पे द कंपेंसेशन एंड ही इज नॉट सेंट टू जेल, उसको जेल नहीं भेजा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके घर के सामने कूड़ा फेंका, सो यू विल नॉट सेंट मी जेल, ठीक है, और कोर्ट विल नॉट सेंट मी टू द जेल, कोर्ट मुझे जेल नहीं भेजेगा, रादर यू विल ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट मी इन द सिविल कोर्ट एंड यू विल क्लेम कंपेंसेशन एज पर द नेचर ऑफ सिविल लॉ। तो सपोज मैंने अगर आपके घर के सामने कूड़ा फेंका है तो इसकी कितनी कंपेंसेशन आप मुझसे क्लेम कर सकते हैं? 10,000, 20,000 मैक्सिमम, ठीक है, एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम मोर कंपेंसेशन बिकॉज द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द सिविल रॉन्ग इज वेरी लो, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा मैंने कोई एक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इसके एक्ट के हिसाब से ही मुझको कंपेंसेशन आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए सिविल रॉन्ग में जो डिफेंडेंट होता है वो कभी भी जेल नहीं जाता है। नाउ वी कम टू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। सो टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी का सेक्शन 40 ऑफेंस को डिफाइन करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। मीन्स कोई भी एक्ट और कोई भी इलीगल ओमिशन जो कि आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है, विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी और अंडर आईपीसी, और एनी अदर लॉ
for the time being in force. Such act or such illegal omission which is punishable either by the IPC or by any other law for the time being in force, such act or such illegal omission are called offense. अब हम act को समझते हैं, act क्या होता है. So act means any bodily movement for any specific purpose. हम कोई भी bodily movement करते हैं जिसका कोई specific purpose है and that purpose has been prohibited by law. So suppose I raise my hand to shoot a person. So this is an act and shooting is prohibited by law. So this act would be an offense and I may be liable for the same. Second क्या होता है? Illegal omission. Illegal omission means violation of any legal duty. किसी legal duty का violation करना. Means लॉ ने आप पर एक लीगल ड्यूटी इम्पोज की है कि आप इस पर्टिकुलर काम को करेंगे एंड इफ यू डोंट डू दिस पर्टिकुलर एक्ट देन यू वुड बी लायबल फॉर द सेम. फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम ए पुलिस ऑफिसर एंड इट इज़ माय ड्यूटी एज पर द पुलिस एक्ट टू डू द पेट्रोलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. मेरी ड्यूटी है कि मैं इस प्लेस से दूसरे प्लेस पर पेट्रोलिंग करूँगा, लेकिन अगर मैं रात को पेट्रोलिंग नहीं करता, अपने घर जाके सो जाता हूँ, so I committed illegal omission and for this illegal omission I may be held liable and it will be deemed that I have committed an offense. तो ऐसा माना जाएगा जैसे मैंने एक अपराध किया है. Now we come to the essential elements of offense. अब हम offense के essential elements पे आते हैं. Essential elements का मतलब होता है कि offense बनता कैसे है और what are the essential elements requires to constitute a particular act as an offense. Means किसी एक्ट को एक अपराध बनाने के लिए किन किन essential elements का होना आवश्यक है. So there are 4 essential elements for the constitution of any offense. First क्या है? The human being. First है हमारा human being. It means that in the case of offense under IPC, both the parties must be human being. Means एक्यूज्ड भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और विक्टिम भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. अगर एक्यूज्ड ह्यूमन बीइंग नहीं है और विक्टिम ह्यूमन बीइंग नहीं है, देन इट विल बी अ क्रिमिनल एक्ट और इट कैन बी अ क्रिमिनल एक्ट, बट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्रिमिनल एक्ट अंडर आईपीसी. तो ये आईपीसी में इसको अपराध नहीं माना जाएगा. इट मे फॉल अंडर एनी अदर लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है नेमली ए और वो किसी डॉग को बीट करता है, ठीक है, अगर वो कुत्ते को मारता है, ठीक है, सो हियर इट विल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, रादर इट मे बी एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट. तो ये इस कानून में अपराध हो सकता है, लेकिन ये आईपीसी में अपराध नहीं होगा. सेकेंड, मेंस रिया. मेंस रिया मीन्स बैड इंटेंशन. So, at the time of commission of the offense, the accused or convicted person must have the bad intention. क्योंकि कोई भी offense कभी भी अच्छी intention से नहीं हो सकता, ठीक है. Now the question may arises, how do we infer the mens rea? तो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर, मैंने अपने दोस्त को बहुत अच्छी भावना से, बहुत गुड इंटेंशन से शूट किया, so whether it would be an offense. And next question may be that sir, how do we come to know that whether a person was having good intention or bad intention? Your questions are correct, but in the case of criminal law, intention of a person is find out from the act of that person. ठीक है, किसी भी पर्सन की इंटेंशन उसके एक्ट से पता चलती है और ना कि उसके बोलने से, ठीक है. सो अगर मैंने किसी पर्सन को शूट किया है, गोली मारी है विद पॉइंट ब्लैंक रेंज, ठीक है, तो बाद में मैं ये नहीं कह सकता दैट आई वॉज नॉट हैविंग बैड इंटेंशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा एक्ट किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना ये शो करता है दैट आई वॉज हैविंग सम बैड इंटेंशन टुवार्ड्स दैट पर्सन हु हैज़ बीन किल्ड बाय मी. ठीक है, जिसको मैंने मार दिया है उसके प्रति मेरी बैड इंटेंशन लॉ प्रिज्यूम कर लेगा. नेक्स्ट क्या है? एक्टस रियस. एक्टस रियस मीन्स एक्ट मस्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ. मीन्स अपराधी और एक्यूज पर्सन मस्ट हैव डन दैट एक्ट विच हैज बीन फॉरबिडन बाय लॉ. अपराधी का काम वो होना चाहिए जो कि लॉ ने फॉरबिड किया है, मना किया है.
सो फॉर एग्जाम्पल कमिटिंग द मर्डर ऑफ एनी पर्सन इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ इसको मना करता है। सो यहाँ पर अपराधी ने अगर किसी का मर्डर किया है देन ओनली ही वुड बी लाइबल फॉर द ऑफेंस। लेकिन सपोज दैट इफ आई एम अबव द 18 years of age and I am driving my car and I am otherwise eligible to drive the car, then it will not be an offense and it will also not be actus reus. Is it okay? Next is injury. इंजरी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट, मीन्स किसी के लीगल राइट का वायलेशन करना। वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, ठीक है। सो लॉ हैज गिवन अस सर्टेन राइट्स एंड इफ समबडी वायलेट्स अवर दैट राइट इट इज कंसीडर्ड एज इंजरी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि इंजरी किसी भी पर्सन को कहाँ कहाँ हो सकती है। सो एज पर सेक्शन 44 ऑफ IPC जो कि इंजरी को डिफाइन करता है, इंजरी किसी भी पर्सन को 4 जगह हो सकती है, बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में और प्रॉपर्टी में। अब बॉडी में कैसे होगी इंजरी? सपोज आई स्टैब समवन, अगर मैं किसी को चाकू मारता हूँ, किसी को थप्पड़ मारता हूँ, तो इंजरी कहाँ होगी? बॉडी में। सेकेंडली माइंड में, अगर मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, टॉर्चर कर रहा हूँ, मेंटल टेंशन दे रहा हूँ, इंजरी कहाँ हुई? माइंड में। अगर मैं किसी की डेफामेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंजरी कहाँ होगी? उसकी रेपुटेशन को होगी। और अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी को छीनता हूँ, एक्सटॉर्शन करता हूँ, रॉबरी करता हूँ, थेफ्ट करता हूँ, डैकॉइटी करता हूँ, देन द इंजरी विल बी कॉज टू दैट पर्सन इन द प्रॉपर्टी। सो इसीलिए इंजरी इन 4 जगह किसी भी पर्सन को हो सकती है। नाउ वी कम टू द स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो क्राइम, कोई भी क्राइम जब होता है वो अचानक से नहीं होता है, रादर इट इज़ ए प्रोसेस। सो इस प्रोसेस में इन 4 स्टेजेस का होना मैंडेटरी होता है। सो फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन, सेकेंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज कमीशन। सो नाउ वी विल डिस्कस दीज स्टेजेस इन डिटेल। सो फर्स्ट क्या है? इंटेंशन। तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज द मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो इंटेंशन एक फिजिकल एक्ट नहीं है, इट इज अ मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट मीन्स before committing any offense, first of all a person decides in his mind that he would commit the offense. So suppose I have to kill someone, so मैं अचानक से जाके उसको नहीं मार दूंगा। First of all I will decide this fact in my mind that I will kill someone. So the moment I will decide this fact in my mind that I will kill someone, it means my intention is formed. तो मेरी पहली इंटेंशन, मतलब मेरी इंटेंशन फॉर्म हो गई और पहली स्टेज को मैंने पार कर लिया, या मैं उस पहली स्टेज में एंटर हो गया। तो जब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि दैट आई विल किल समवन, तो मीन्स आई हैव फॉर्म द इंटेंशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज वेदर इंटेंशन इज पनिशेबल और वेदर इंटेंशन इज एन ऑफेंस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल एंड इट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंटेंशन पनिशेबल क्यों नहीं है और ये ऑफेंस क्यों नहीं माना जाता? इसको हम इसलिए ऑफेंस नहीं मानते बिकॉज वी कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ एनी पर्सन। हम किसी भी पर्सन के माइंड को नहीं रीड कर सकते कि उसके माइंड में क्या है। तो अगर हम रीड नहीं कर सकते तो हम उसको गिल्टी भी नहीं ठहरा सकते। सेकेंडली कि वो केवल सोच रहा है, ही डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन, तो इसलिए इससे किसी को इंजरी भी नहीं हुई और किसी के सोचने पर हम लिमिटेशन नहीं इम्पोज कर सकते बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सेकेंड वी कम टू प्रिपरेशन। Now what is preparation? So preparation means arranging some means to commit an offense. देखिएगा, कोई भी अपराध जब हम करते हैं तो उस अपराध को करने के लिए सारे एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं या सारे एसेंशियल टूल्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वॉन्ट्स टू किल बी बाई शूटिंग, ए बी को गोली मारकर मारना चाहता है। So A may not have pistol with him, so he will arrange pistol first of all. So the moment he will take first step from his house to arrange the pistol, it means that he has started the preparation. और जब वो पिस्टल लेकर अपने घर आ जाएगा, it means he has completed the stage of preparation. अभी ये stage of preparation कब तक चलेगी? Suppose A को B को मारना है पिस्टल से, वो पिस्टल लाया, अपने घर में रख ली और नेक्स्ट डे वो उसको मारने के लिए चल दिया। अब वो बी के घर के पास पहुंचा, अभी भी ये क्या है? प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन क्यों है? क्योंकि ए में चेंज हिज माइंड, ए अपने माइंड को बदल सकता है कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू किल बी। लेकिन अगर
ए बी के घर जाता है और बी उसे दिख जाता है और सामने ए पिस्टल निकालकर उस पर ट्रिगर दबा देता है। सो द मोमेंट ही विल पुश द ट्रिगर इट विल बिकम एन अटेम्प्ट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन। सो अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन में एक डिफरेंस जो मेन है वो ये है, क्या, इफ ए पर्सन कैन स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज इन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। और अगर कोई पर्सन अपने आप को क्राइम करने से नहीं रोक सकता, मीन्स थोड़ा वो आगे बढ़ गया, लाइक ट्रिगर दबा देना, तो इट मीन्स दैट इट इज द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। So this is the main difference between the two. Now question arises whether preparation is punishable or not. So as a general rule, preparation is not punishable except in the following cases. So first situation क्या है, preparation to wage war against the state under section 122 means अगर कोई व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट, भारत सरकार के अगेंस्ट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेजिंग वार मीन्स युद्ध करने की प्रिपरेशन ही करता है, देन मेयरली प्रिपरेशन इज पनिशेबल। तब प्रिपरेशन क्या होगी, पनिशेबल होगी, और हम जो लॉ है हमारा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसके पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं केवल इस स्टेज पर। सेकंड क्या है, प्रिपरेशन टू कमिट्स डैकोइटी अंडर सेक्शन 399। सो अगर कोई व्यक्ति डैकोइटी करने की तैयारी करता है तो उसके आधार पर ही उसको पनिश किया जा सकता है, इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। नाउ डैकोइटी क्या है, सो डैकोइटी को सेक्शन 391 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 391 क्या कहता है, सेक्शन 391 कहता है कि व्हेन रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन्स देन इट इज कॉल्ड एज डैकोइटी। जब रॉबरी का ऑफेंस 5 या 5 से अधिक लोग करते हैं तो हम उसको डैकोइटी या डकैती कहते हैं। तो डकैती की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, कभी भी 4 पर्सन डकैती नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम एंड दैट इज अटेम्प्ट। सो व्हाट इज अटेम्प्ट, सो अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट्स टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम। तो ये किसी भी ऑफेंस को करने का डायरेक्ट मूवमेंट होता है। इफ यू टेक द एग्जाम्पल गिवन इन द प्रिपरेशन मीन्स ए गोज टू द हाउस ऑफ बी, ए बी के घर जाता है बी को मारने के लिए, तो जब तक वो ए बी के घर जाता है तब तक वो प्रिपरेशन की स्टेज में है। लेकिन जैसे ही वो पिस्टल निकाल कर उसको शूट कर देता है, ट्रिगर दबा देता है, यहाँ पर वो उसने अटैम्प्ट कर दिया। ऑल द अटैम्प्ट आर पनिशेबल, सारे अटैम्प्ट पनिशेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, क्या, सारे अटैम्प्ट का पनिशमेंट हमारी आईपीसी में नहीं दिया हुआ है। कुछ अटैम्प्ट्स हमारे ऐसे हैं विच हैव बीन स्पेसिफिकली मेड पनिशेबल और सेपरेटली बीन मेड पनिशेबल। तो कुछ अटैम्प्ट का पनिशमेंट सेपरेटली दिए गए हैं, उनके सेपरेट प्रोविजंस हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द अटैम्प्ट्स हैं किसी भी अपराध के, उनको केवल एक सेक्शन डील करता है एंड दैट इज सेक्शन 511। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सेक्शन 378 आईपीसी चोरी को डिफाइन करता है, थेफ्ट को डिफाइन करता है, लेकिन थेफ्ट वो केवल थेफ्ट को डिफाइन करता है, और सेक्शन 379 थेफ्ट का पनिशमेंट की बात करता है। लेकिन देयर में भी अटेम्प्ट टू थेफ्ट एज वेल। सो इफ एनी पर्सन हैज कमिटेड अटेम्प्ट टू थेफ्ट देन द क्वेश्चन अराइजेस वेयर और अंडर विच सेक्शन दैट पर्सन वुड बी पनिश्ड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट सच पर्सन वुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 511। सो नाउ हम इसको करते हैं। सो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, सो अगर कोई पर्सन कमिट मर्डर करता है then it is a punishable offense under section 307 of IPC. Secondly, अगर कोई attempt to culpable homicide करता है so it is a punishable offense under section 308 of IPC. Next, attempt to commit suicide करता है तो it is an offense under section 309 of IPC. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम attempt to suicide को समझ लेते हैं। अब से पहले क्या था कि इसमें एक मेंटल हेल्थ बिल आया है 2017 में। अब से पहले क्या था कि अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड करता था, अटेम्प्ट टू सुसाइड का मतलब है एनी स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सुसाइड। तो अगर कोई पर्सन सुसाइड की डायरेक्शन में कोई भी स्टेप लेता था तो उसको अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए पनिश किया जा सकता था एज पर सेक्शन 309 आईपीसी। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता था, पुलिस पर, दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस पर्सन वाज गोइंग टू कमिट द अटेम्प्ट टू सुसाइड लाइक दिस।
तो उसमें जो पनिशमेंट थी दैट वाज ऑफ अप टू 1 ईयर। लेकिन जब मेंटल बिल हेल्थ बिल आया तो इसमें प्रिजम्पशन ये की जाएगी, इफ ए पर्सन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड देन द लॉ विल प्रिज्यूम दैट सम पर्सन इज इन द डिप्रेशन और सम पर्सन इज मेंटली इल, and the burden of proof will be upon police that such person is not mentally ill or such person is not in depression। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिफरेंस क्या आया है दोनों सिचुएशन में, अर्लियर में और जो अब एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। सो डिफरेंस क्या है कि लॉ ये प्रिज्यूम करेगा अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है देन द लॉ विल प्रिज्यूम that person is in the depression or that person is mentally ill. The police has to prove that this person is not mentally ill or this person is not in the depression. Next we come to attempt to commit robbery. So section 393 जो है it is providing for attempt to commit robbery. तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन इन 4 ऑफेंस को करता है then that person would be punished according to these sections. But if a person commits any other attempt of any offense apart from these 4 situations or 4 sections, then all such attempt will fall under 511 of IPC। और उस अटेम्प्ट को करने के लिए उसको हाफ सजा दी जाती है, हाफ पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन चोरी करता है एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इज अप टू 3 ईयर्स, तो 3 साल तक इसको सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट टू थेफ्ट करता है तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी 18 मंथ। तो चोरी की 36 मंथ का आधा 18 मंथ। नाउ वी कम टू कमीशन। सो इफ ए पर्सन, द कमीशन इज द लास्ट स्टेज एंड इफ ए पर्सन कमिट्स द अटेम्प्ट देन साइमल्टेनियसली कमीशन आल्सो अकर्स। तो अटेम्प्ट और कमीशन एक साथ ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को शूट किया तो क्या होगा, या तो वो व्यक्ति मरेगा या वो व्यक्ति नहीं मरेगा। तो ज़्यादातर चांस तो होंगे कि वो मर जाएगा। So as soon as the person will die, it means that I have committed the offense। लेकिन अगर वो पर्सन बच गया तो I will be liable for attempt to murder of that person। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। There is enmity between मोहन एंड श्याम। मोहन और श्याम के बीच में दुश्मनी है। One day मोहन decided to commit the murder of श्याम। एक दिन मोहन ये डिसाइड कर देता है कि अब मुझको श्याम को मारना है। One day he bought a pistol from market to shoot श्याम। तो फिर वो पिस्टल ले आता है शाम को मारने के लिए। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द हाउस ऑफ श्याम। दूसरे दिन वो शाम के घर जाता है एंड फायर्ड अपॉन हिम। तो जब वो फायर करता है, देखिएगा, द मोमेंट ही फायर्ड अपॉन श्याम ही इज लायबल टू कमिट द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ श्याम। अब जैसे ही उसने श्याम पर फायर कर दी तो उसकी लायबिलिटी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगी। अब यहाँ पर क्या है, अब फायर करने के बाद अगर श्याम की डेथ हो जाती है तो मोहन वुड बी लायबल फॉर मर्डर ऑफ श्याम। और अगर श्याम की डेथ नहीं होती, श्याम गिर जाता है, ब्लीडिंग होती है, सो हेयर एट दिस प्रेजेंट टाइम मोहन वुड बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर श्याम। लेकिन अगर श्याम हॉस्पिटल में जाके मर जाता है तो वहां पर क्या होगा, मोहन अगेन विल बी लायबल फॉर द मर्डर ऑफ श्याम। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next topic. Till then, thank you very much. Goodbye.